अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं वरलक्ष्मी इंद्रकांति, सेम विषय पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश SCCM 02 B.Ed स्पेशल एजुकेशन और इंस्ट्रक्शनल एड्स का ही दूसरा हिस्सा, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे टेप रिकॉर्डर्स, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स। सो इन सब का एजुकेशन में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और पिछले कई वीडियो की तरह आपने देखा ही होगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम्स दोनों ही जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम तय करते हैं कि छात्र इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, और लर्निंग आउटकम्स हमको ये बताता है कि छात्रों ने इस वीडियो को देखने के पश्चात क्या सीखा, और दोनों को ही हमको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टीचिंग एड्स बेसिकली क्या है। सो अ टीचिंग एड इज़ अ टूल यूज्ड बाय टीचर्स, facilitator or tutors to help learners improve reading and other skills, illustrate or reinforce a skill, and since many teaching aids are available like games or videos, audios, story videos, there are so many teaching aids are available. So now we will understand what is teaching aid. Basically, teaching aid is used by facilitator or a teacher to help him or her with the teaching learning process and to make the learning more effective. Now we will talk about what are the various audio visuals material, these instructional aids, devices, materials which help in carrying out teaching learning process through use of audio, visual or both audio visual formats. So audio visual materials include print and non-print media, projected and non-projected media, and hardware and software needed for transmission of information and instruction. Then every teaching learning process has certain objectives that ought to be achieved. कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक विषय को पढ़ाने के पूर्व आप देखेंगे कि अभी आपने जैसे हमने बात की कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार अवेलेबल टीचिंग एड्स में से कौन सा उस पार्ट को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में सहयोगी होगा, इसका चुनाव करना भी टीचर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है. So the teacher or the facilitator use different types of teaching methods, techniques, materials and devices along with various strategies. So basically using this teaching aids and its purpose is to make teaching learning more effective, enjoyable, to increase the retention power of the students and to make them involved or engaged during teaching learning process. So audio visual materials are so designed and interwoven with the lesson plan that they facilitate the teaching learning process. Then tape recorders, radios, television, films and film strips are examples of audio visual aids, which are instructional devices that combine sounds and visuals to enhance the teaching and learning process. During this world of media or information technology, there is a boom of information and technology world around. So, tape recorder, radios, television and films or the film stills are not very much in use, but still they are very, very important in classroom
teaching learning process. And you will see that audios like radios, tape recorders, they convey message through sound, while visual aids such as film strips rely solely on images. अब आप देखोगे कि रेडियो एक ऐसी चीज है जो घर घर तक पहुंचती है, और आप देखेंगे कि रेडियो के माध्यम से आप सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, बैंकिंग की सुविधाएं, स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह से रखा जाना है, किसान खेती किसानी में उन्नत तरीके किस तरह से अपना सकते हैं, छात्र अपने शैक्षिक परफॉर्मेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये सभी कार्यक्रम आप देखेंगे कि टेलीविज़न और रेडियो में लगातार आते रहते हैं. सो आप अपनी आवश्यकता अनुसार रेडियो और टेलीविज़न से आप अपने कार्यक्रम को चुनकर उनको आप लगातार देख सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप अपने जीवन में उठा सकते हैं. सो आप देखोगे कि ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूडिंग टेलीविजन एंड फिल्म्स, दे अलाउ यूजर टू हियर एंड सी द मैसेज साइमल्टेनियसली, मेकिंग लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव. इसका मतलब क्या है, जब आप किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं तो वो आपके लिए कितनी एंगेजिंग होती है, एंटरटेनिंग होती है, और आप स्टोरी 3 घंटे की स्टोरी को बहुत आसानी से 15 मिनट में बताने की काबिलियत देख लेते हैं. सो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उनका बहुत इम्पैक्टफुल इफेक्ट हमको स्टूडेंट्स की लर्निंग पर देखने के लिए मिलता है. जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको चित्र में बताया है कि बहुत समय पहले 1950-55 के आसपास ये इस टाइप के डिस्क वाले टेप रिकॉर्डर चला करते थे. अब उसके बाद ये रेडियो और टेप रिकॉर्डर इस टाइप वाले भी चलते हैं. धीरे धीरे इनका उपयोग कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं. फिर आप देखोगे कि ये टीचिंग एड्स बेसिकली हम कक्षा में क्यों उपयोग करते हैं. तो ये चित्र आपके समक्ष है और इसका सोर्स भी ऊपर लिखा हुआ है. सिमिलर टाइप के चित्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. तो टीचिंग एड क्या है, सबसे पहली बात वो मोटिवेट करता है, फन फील्ड लर्निंग को मोटिवेट करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं, हॉलिस्टिक लर्निंग होती है, एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. सो छात्र मोटिवेटेड रहेंगे, खेल खेल में सीखेंगे, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को आसानी से सीखेंगे. सो छात्रों की जो हॉलिस्टिक लर्निंग होती है, ओवरऑल लर्निंग होती है, वो परफॉर्मेंस को बेहतर करने में टीचिंग एड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ साथ जो भी आपने सीखा है वह काफ़ी समय तक आपकी मेमोरी में बना रहता है. सो रोल ऑफ टेप रिकॉर्डर्स एंड रेडियो एज अ इंस्ट्रक्शनल एड. सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स. ऑडियो लर्निंग. Tape recorders and radios provide an auditory learning experience catering to students with different styles. और क्लासरूम में स्पेशल चिल्ड्रन जो है, हमने कई बार देखा है, चूँकि इसी क्षेत्र में कई वर्षों से होने के कारण जो है बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड जो होते थे वो टीचर के लेक्चर को छोटे से टेप रिकॉर्डर में, जो पॉकेट रिकॉर्डर होता है, उसमें रिकॉर्ड कर लिया करते थे, और जिससे कि वो बाद में घर में जाकर भी टीचर के लेक्चर को सुन सकें. इसके साथ साथ आता है लैंग्वेज लर्निंग. चूँकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दीज डिवाइसेज हेल्प ग्रेटली इन लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि उससे हम प्रोनाउंसिएशन है, पॉजिंग है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज. देन कम द एक्सेसिबिलिटी. दीज ऑडियो मटेरियल्स आर, it can be accessed from anywhere, anytime, and it is very flexible for the learners to use. Then आता है supplemental resources. Tape recorders and radios can provide additional resources to support classroom instruction. इसका मतलब क्या है कि टीचर की बात को रिकॉर्ड करके आप जो है उसका उपयोग बाद में भी कर सकते हैं. सो डेफिनेटली इट सपोर्ट्स द क्लासरूम टीचिंग. फिर यूज ऑफ टेप रिकॉर्डर एंड रेडियो एज इंस्ट्रक्शनल एड्स.
सो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में जैसे कि हमने बात की है, ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप 2 बार 3 बार 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 सुनिए, पंक्चुएशन को देखिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, स्टोरी की समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। तो लैंग्वेज लेसन में हाउ टू डिलीवर द डायलॉग्स, हाउ टू डिलीवर अ स्टोरी, हाउ टू यूज पर्टिकुलर वर्ड, दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑडियो बुक्स की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। सो ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं उसको आप कभी भी प्ले करके आप उस बुक्स को पढ़ने के लिए, मोबाइल में भी ये ऑप्शन दिया रहता है कि आप कंटेंट को यदि पढ़कर सुनना चाहते हैं, सो वो ऑप्शंस भी आजकल अवेलेबल है। और पिछले 40-50 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी सारा परिवर्तन आया है और उस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, तो आज हमारे समक्ष बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। परंतु जब टीचिंग एड्स के रूप में रेडियो और टेलीविज़न का उपयोग हुआ था, तो उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेलीविज़न और रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शनल एड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर पॉडकास्ट है, आज आप सुन सकते हो कि पॉडकास्ट रेडियोज़ होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, उसमें विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों के विभिन्न विषयों पर आप पॉडकास्ट देख सकते हो। फिर आता है इंटरव्यूज़, आप जो है रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ विद एक्सपर्ट्स और गेस्ट स्पीकर्स, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और आपने देखा होगा आईएएस, आईपीएस जो बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं, उनके भी जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग एड हो सकता है। और आप देखोगे कि टेप रिकॉर्डर और रेडियो को क्लासरूम टीचिंग में किस तरह से इंटीग्रेट करना है, यह भी टीचर को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अ टीचर टू इंटीग्रेट दिस ऑडियो मटेरियल इनटू लेसन प्लान एंड यूजिंग दैम टू रीइंफोर्स द की कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखेंगे कि टेप रिकॉर्डर तो टीचर कक्षा में भी लेकर जा सकता है और जब आवश्यक हो उसको ऑन कर लिया, जब आवश्यक हो उसको बंद कर दिया। परंतु टेलीविजन के साथ हमारी दिक्कत होती है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट आज आप लोग देखोगे कि ऑडियो विजुअल एड्स की अलग से लैब होती है एंड इन नर्सरी केजी में तो आप देखोगे बड़ा सा टीवी लगा रहता है जिसमें छात्रों को पोएम्स हैं, स्टोरी है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, वो जो हैं बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है ऑनलाइन, जिन रिसोर्सेज का टीचर जो है कक्षा में प्रयोग कर सकता है। फिर फॉलो अप एक्टिविटीज़, प्लान फॉलो अप एक्टिविटीज़ सच एज डिस्कशन और राइटिंग असाइनमेंट्स टू रीइंफोर्स लर्निंग। इसका मतलब है मान लीजिए आप कोई एजुकेटिव फिल्म टीवी में दिखा रहे हैं, सो फिल्म को दिखाने के पश्चात आप छात्रों के साथ बैठिए, उस फिल्म के बारे में डिस्कस करिए और छात्रों से उसके कंक्लूजन्स लीजिए। लैंग्वेज में खास तौर से आप कैरेक्टर राइटिंग के बारे में कर सकते हैं, समरी लिखने के बारे में बात कर सकते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी के बारे में लिखने के लिए बात कर सकते हैं। सो ये डिस्कशन जो है आप टेलीविज़न की शॉर्ट फिल्म दिखाने के बाद ये डिस्कशन कक्षा में अवश्य करें, तब आप देखेंगे कि इन टीचिंग एड्स का और ज़्यादा जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। टेक्निकल सपोर्ट, ensure technical support is available to address any technical issues while using the equipment। इसका मतलब क्या है कि टीचर्स जो हैं यदि वो टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करने में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, सो वी मस्ट ensure before entering the class whether the technical support is readily available for the teacher or not. Then limitations of tape recorder and radio as an instructional aid. So distraction, audio material can be distracted if not used effectively। मतलब चूंकि सब आवाज़ आती रहती है सो हमारा मन कहीं और भी भटक सकता है। सो इन कंपैरिजन टू ओनली ऑडियो विजुअल एड्स आर कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन। देन टेक्निकल इश्यूज, कई बार जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका चलता हुआ लेसन प्लान जो है बीच में रुक सकता है। फिर लिमिटेड इंटरैक्शन, ऑडियो मटेरियल में क्या है, टू वे इंटरैक्शन नहीं होता है। एक्सपर्ट जो है अपनी बात कहकर रह जाता है पर छात्रों को
जो है अपनी बात कहने के लिए उसमें संभव गुंजाइश बहुत कम होती है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टेप रिकॉर्डर्स हैं, रेडियो को यदि इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, सो एजुकेटर्स को यह ध्यान रखना होगा कि किस तरह से एंगेजिंग एक्टिविटी के माध्यम से ऑडिटरी लर्निंग एक्सपीरियंस को करने के लिए किस तरह से वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि छात्रों की लर्निंग बेहतर हो। इस बारे में उनको पहले से ही पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आता है बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ टेलीविजन फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स। सो विजुअल लर्निंग, अभी हमने बात की, ऑडियो विजुअल लर्निंग एक साथ होती है तो छात्रों को वो काफ़ी समय तक रिटेंशन होता है। सो आप ये देखोगे एंगेजिंग होता है एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस। जितना मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, रिटेंशन उसकी ज़्यादा होती है, इंटरेस्टिंग तो होता है। एंड स्पेसिफिकली ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स दे कैटर द नीड्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। और लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए ये ऑडियो विजुअल एड्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर रियल वर्ल्ड कनेक्शन, फिल्म्स you can correlate and sometimes you feel that you are there in place of the hero. So ये एप्लीकेशन जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो आपको काफ़ी रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसलिए आप क्लासरूम में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फिर आता है मोटिवेशन। टेलीविजन फिल्म्स एंड फिल्म सीरीज कैन मोटिवेट स्टूडेंट स्पार्किंग देयर इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो फिल्में बनाई जाती हैं यह आवश्यक नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती हैं। उनके माध्यम से छात्र जीवन की कठिन संघर्ष से किस तरह से लड़ना है, भाषा का विकास किस तरह से करना है, या फिर किसी भी वाक्य को जो है वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये भी जो है पिक्चर देखने के माध्यम से सीख सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। फिर ये इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स फॉर स्टूडेंट्स, जिनको कि 4 इसके माध्यम से बताई दिया है। मेक्स लर्निंग इंटरैक्टिव एंड फन लविंग, इम्प्रूव्स रिटेंशन एंड रिकॉल, देन बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, देन ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो टीचिंग एड्स के माध्यम से छात्रों की लर्निंग निश्चित रूप से बेहतर होती है। फिर देन यूसेज ऑफ टेलीविजन फिल्म स्ट्रिप एज इंस्ट्रक्शनल एड्स। सो ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीविज़न और रेडियो में ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिसका समय जो है यदि छात्रों को पूर्व में ही बता दिया जाए तो उसको बहुत आसानी से मिलकर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, देन आप देखोगे कि एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस के लिए, देशभक्ति के लिए ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल सीरीज़ बनाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से जो है छात्र जो हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म्स की भी बात वही आएगी। फिल्म भी ऐसी बहुत सारी हैं जिनके माध्यम से आप विभिन्न विषयों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लैंग्वेज में आप एक लैंग्वेज को बेहतर तरीके से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप कर सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन कक्षा में किस तरह से प्रयोग करोगे, किसी भी भाषा के लिए सही उच्चारण, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप फिल्मों को देखकर ये आसानी से सीख सकते हैं। और हिस्ट्री, साइंस और लिटरेचर, इन सभी विषयों में जो है टेलीविज़न या फिर फिल्म्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। फिल्म स्ट्रिप्स पुराने ज़माने की बात है, आगे हम उसकी पिक्चर भी देखेंगे। सो फिल्म स्ट्रिप में एक विजुअल नैरेटिव दिया जाता था और उसके साथ साथ यदि टीचर साथ साथ इलस्ट्रेशन देती चली जाएगी तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द लर्नर टू अंडरस्टैंड। ये आती है आपकी फिल्म स्ट्रिप है, ये प्रोजेक्टर है। पुरानी फिल्म जो ब्लैक एंड वाइट चला करती थी वो किस तरह से बनाई जाती थी, ये हमको देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए फिल्म स्ट्रिप्स और प्रोजेक्टर क्या होते हैं। इस वजह से ये इमेजेस यहाँ पर लगाई गई हैं। ये आप देखोगे कि टेलीविज़न पहले जब नए नए समय में टेलीविज़न आया था
तो किस तरह का टेलीविज़न था, और आज आप देखोगे कि लाखों लाखों रुपए में जो है एंड्रॉयड टेलीविज़न हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। तो इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेलीविज़न फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स एज इंस्ट्रक्शनल एड्स में आप ये देखोगे कि विभिन्न तरह के टीचिंग एड्स होते हैं। क्लासरूम टीचिंग में टीचर उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेगा, लेसन में कब, कहाँ और कैसे उसका उपयोग करेगा, ये टीचर को जानना और समझना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कंटेक्चुअलाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट फॉर विजुअल मटेरियल्स, ensuring students understanding their relevance। इसका मतलब क्या है, यदि आप कक्षा में कोई फिल्म दिखाने जा रहे हैं तो उसके पहले ही बच्चों को ये समझा दें कि किस विषय में कहाँ पर यह फिल्म आपके लिए उपयोगी होगी, और आपको कॉपी पेन लेकर, डायरी लेकर रेडी रहना है, जिससे कि आप इन फिल्म को देखने के बाद टीचर उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेगी, और वही प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है। उसके ऊपर बेस्ड क्विज हो सकता है, किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के बारे में हो सकता है, किसी डायलॉग की व्याख्या करने के लिए हो सकता है। सो इस तरह से किया जाता है, और इसके साथ साथ फॉलो अप एक्टिविटीज़ करना भी ज़रूरी है। सो वन शुड नॉट फील दैट द फिल्म इज़ ओनली शोन ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। Questions based on the film can also be asked by the teacher. Then only television can be a very good teaching aid for educational purposes. Then selection. Out of many, which is the best one suitable to the topic, that has to be selected by the teacher. Then definitely any instructional aid which is having benefits, so definitely it will have limitations also. तो डिस्ट्रैक्शन, पिक्चर और जो फिल्म दिखाई जा रही है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मेन कंटेंट से आपको भटका सकती है। टेक्निकल इश्यूज कभी भी आ सकते हैं, मतलब कभी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, तो वो माध्यम कई बार इंटरप्ट होते हैं। फिर लिमिटेड इंटरेक्शन फिल्म के दौरान, क्योंकि फिल्म खासतौर से टेलीविज़न पर टेलीकास्ट फिल्म जो होती है वो अपनी स्पीड से चलेगी। आप यदि उसको रिकॉर्ड कर अपनी क्लास में दिखा रहे हैं तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, फिर दिखा सकते हैं। और आजकल तो इतने सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं जहाँ पर कि एजुकेशनल फिल्म्स आप वाइल प्लेइंग इटसेल्फ आप बीच में उसको पॉज करके बच्चों को उनके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करिए, और उसके बाद पॉज को अनपॉज किया और आप स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इसके साथ साथ छात्रों के साथ लगातार आप मूल्यांकन भी करते रहें और फीडबैक भी लेते रहें, जिससे कि जिस एजुकेशनल पर्पस को पूरा करने के लिए आपने इन टेलीविज़न या टेप रिकॉर्डर या रेडियो का इस्तेमाल किया है, क्या वह शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं। देन बाय लेवरेजिंग टेलीविज़न, फिल्म और फिल्म्स effectively, educators can create engaging, visually learning and student support with enjoyment. They can create such an environment in the classroom that students are engrossed and they are enjoying the difficult concept through this television or the radio. Then using visual materials in specific subjects. डॉक्यूमेंट्रीज हैं, साइंस जैसे विषय में आप जो है डॉक्यूमेंट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर से टू शोकेस दी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जैसे एनिमल बिहेवियर है, इको सिस्टम है, स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, या फिर आप देख सकते हो कि तारामंडल किस तरह से काम करता है, कॉन्स्टेलेशंस कैसे क्या हैं, या फिर वोल्केनिक इरप्शन किस तरह से होता है, ये आप जो है इन डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से सिखा सकते हो। देन बहुत डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि लेबॉरेटरीज़ में हुए हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की भी रिकॉर्डिंग हमारे लिए उपलब्ध है। आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतना अधिक डेवलप कर लिया है कि हमने तो सुना है कि भोपाल में भी रोबोट के माध्यम से डिफ़िकल्ट सर्जरीज हो रही हैं। सो आप देखोगे कि ऐसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और विजुअल एड्स में, जैसे हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जो डायग्राम्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको जो है
एक्सप्लेन करने में ये विजुअल एड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी आप हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनको आप दिखा सकते हैं। फिर प्राइमरी सोर्सेज में जैसे आप देखोगे फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, किसी किसी की स्पीचेस हैं, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। और मैंने भी कई बार, चाहे जो आज हमारे पास पुराने लीडर्स नहीं हैं, महात्मा गांधी का रिकॉर्ड, लाल बहादुर शास्त्री का है, देन जवाहरलाल नेहरू का है, अटल बिहारी वाजपेयी का आपने देखा होगा। सुभाष चंद्र बोस के भी हमने कई रिकॉर्डिंग्स सुनी है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो उस समय में रिकॉर्ड की गई थी वो आज हमारी डिपॉजिटरी में उपलब्ध हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में दिखाई जाती हैं। फिर री एनैक्टमेंट्स और रीबिल्डिंग, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या लाइफ हैं उनको जो है आप क्रमबद्ध तरीके से कक्षा में भी दिखा सकते हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट जो है उस ज्ञान को कोरिलेट करेंगे और वह छात्रों के लिए काफ़ी एंगेजिंग होगा और रिलेटेबल भी होगा कि हाँ, इस तरह की घटना हमारे जीवन में भी कभी हुई थी। फिर लैंग्वेज आर्ट्स, फिल्म एडाप्टेशन, यूज फिल्म एडाप्टेशंस ऑफ लिटरेरी वर्क्स टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रमोट डिस्कशन। आप देखोगे कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं, वीडियो क्लिप्स होती हैं, जो हमारी जो है जो लैंग्वेज में, ख़ास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। वो अपनी स्टोरी बुक जब लॉन्च करते हैं, नॉवेल लॉन्च करते हैं, तो उसके बारे में हमको उनकी बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स देखने के लिए मिलती है। फिर आता है आपके ऑथर्स के इंटरव्यूज़, बहुत सारे होते हैं जो कि टेलीविज़न में भी आपको मिल जाएंगे, कई बार रेडियो में भी रिपीट किया जाता है, या फिर आप देखोगे इनकी रिपोजिटरी जो होती है उसमें भी आप जाकर आप देख सकते हैं। और कई बार आपने टेलीविज़न और रेडियो में भी बहुत पुराने रिकॉर्डेड जो है लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। इसके साथ साथ पोइट्री रीडिंग, यूज वीडियो और पोइट्री रीडिंग टू ब्रिंग पोइट्री टू लाइफ एंड प्रमोट कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि पोइट्री रेसिटेशन के भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध होते हैं जो हमको किस तरह से पोइट्री को पढ़ना है, उसका आनंद लेते हुए एक एक शब्द का उच्चारण किस तरह से करना है, वो लैंग्वेज में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जिन टीचिंग एड्स की हम बात कर रहे थे, चाहे वो टेलीविज़न हो, फिल्म स्ट्रिप्स हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, ये सब चीज़ें जो हैं विभिन्न विषयों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, म्यूज़िक हो। और इसके साथ साथ आप देखोगे ये जो उपलब्ध टीचिंग एड हैं, ये आपके करिकुलम के अनुसार, आपके शैक्षणिक उद्देश्य के अनुसार, आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप अपने करिकुलम के साथ इनको अलाइन कर सकते हैं और इनका उपयोग आप कक्षा में कर सकते हैं। और ये बात देखी गई है विभिन्न रिसर्चर्स के माध्यम से कि खाली लेक्चर मेथड से छात्र उतना अधिक नहीं सीख पाता है, पर यदि ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से छात्रों को डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की जाती है तो वो छात्रों के लिए बहुत अधिक एंगेजिंग, मोटिवेटिंग और जो उनका कॉन्सेप्ट होता है उसका रिटेंशन काफ़ी समय तक के लिए होता है। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ teaching material in the classroom, before that you have to tell them the context or for what purpose you are using this audio video clip or the interview of someone, that has to be told in advance to the learners. फिर at the last we will just go through the key points. Then use of tape recorders, radio, television, films and films as instructional aids can significantly enhance the learning experience, and these tools provide a range of benefits. So we will be discussing the key points. What are the key points? Multi sensory learning, देखते हैं, सुनते हैं, और जो उनकी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को प्रभावित करते हैं। और इसके साथ साथ जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है इस तरह के टीचिंग एड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंक्रीज एंगेजमेंट, चूँकि इंटरेस्टिंग होता है, एन्जॉयबल होता है, इसलिए छात्रों का इसमें रिटेंशन ज़्यादा होता है। फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग, चूँकि ये मोटिवेटेड हैं,
एंजॉय कर रहे हैं। इसकी वजह से ये पाया गया है कि टीचिंग एड को यदि हम लगातार कक्षा में यूज़ करते रहते हैं तो छात्रों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको इन टूल को जब चाहे जैसे चाहे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ टीचिंग एड को छोड़कर बची हुई चीज़ों को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आज तो ऑनलाइन के क्षेत्र में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग भी उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम छात्रों को जब चाहे जहाँ चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। सो आप ये देखोगे कि ये टीचर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल, बट इट इज़ द टीचर्स एफिशिएंसी which type of teaching material or instructional material will be used for various kinds of लेसन प्लान्स। पोइट्री में कौन सा यूज़ करना है, प्रोज में कौन सा करना है, ड्रामा में कौन सा करना है, ये टीचर को पता होना चाहिए और जिसके माध्यम से एक इंटरैक्टिव सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में वह बना सकती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल किस तरह से यूज़ करना है। पहले तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि केयरफुल सिलेक्शन मटेरियल, हाउ टू इंटीग्रेट द टीचिंग मटेरियल विद द करिकुलम, फिर कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है कि किस रेफरेंस में क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये टीचिंग एड्स या इंस्ट्रक्शनल एड जो हैं टीचर को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिवली ट्रांसमिट करने में ये टीचिंग एड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अंत में जो है हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन टेप रिकॉर्डर एंड रेडियोज बी यूज्ड टू सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम? देन व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑडियो मटेरियल्स इन द क्लासरूम? Then how can film be used to teach complex concepts in science or mathematics? Or what are some benefits of using radio broadcast in the classroom? How can television be used to promote critical thinking and discussion in the classroom? Then what are some consideration for selecting films or videos for classroom use? फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस में है डिस्कस द रोल ऑफ tape recorders and radios as an instructional aids in the classroom. Provide examples of how they can be used to support learning in different subjects and discuss their potential benefits and limitation. Next question is discuss the role of multimedia resources such as tape recorders, radios, television, film strips and films and in enhancing the learning experience, and provide examples of how these tools can be used to support learning in different subjects. So, in detail, we have talked about the learning materials or the teaching aids, specifically television, radio, film strips, how important they are in teaching learning process. We have discussed in detail. Next video में हम आपके समक्ष किसी नए विषय और नए टॉपिक को लेकर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।